Namaskar. A very good evening to all of you. Myself, Dr. Alankar Tiwari, consultant endocrinologist. I welcome you in this another session of Endocrine Society of India Facebook Live session for public awareness. This week, we are starting with another month, another theme that is obesity, a very important theme, a very important topic. And today is World Obesity Day, 4th of March. And from this day, we are starting our obesity month, obesity theme. And for this, we have four eminent endocrinologists from India, from different cities of India, to discuss about various issues, basics, etiologies, and various facts related to obesity. And I welcome all these panelists one by one. So first, let me introduce you our first panelist, Dr. Nitin Kapoor, sir. He is professor of endocrinology at Department of Endocrinology, Diabetes and Metabolism at CMC Vellore. Most welcome, sir. Thank you. Our second panelist is Dr. Raghu MS. He is consultant endocrinologist at Dr. Raghu's Diabetes and Hormone Care at Mysuru. Most welcome, sir, in our program. Thank you. Good evening to all. Okay. Then our next panelist is Dr. Abhilasha Jain, ma'am. She is a consultant endocrinologist at Amrit Dhara Hospital, Karnal, Haryana. Most welcome, ma'am. Hello, everyone. And our last panelist is Dr. Akash Shah. He is a consultant endocrinologist practicing at Sushruth Hospital at Ahmedabad. Most welcome, Dr. Akash. Hello. Thank you. Okay, so we are going to begin our program. And as we have already said that the topic for today's program is obesity, and obesity especially in the Indian scenario. And obesity, we all know that it is becoming like a pandemic, secondary to diabetes, and etc. It is one of the most common endocrine disorder these days. But still, the irony is it is not taken as a disorder still. Rather, it is taken as a sign of prosperity in our country. किसी को अगर हम बोलते हैं कि ही इज ओबीस और ओवरवेट तो बात होती है कि नहीं नहीं हम तो भाई खाते पीते घर के हैं तो वी आर हियर टू बस्ट दीज मिथ्स एंड फैक्ट्स एंड नो द reality of this obesity, and for this we have our experts. And I would request Dr. Nitin sir first to say something about our theme and introduce our today's theme. Nitin sir. Thank you so much, Dr. Alankar, and I think it's a great step from ESI to conduct a series of Facebook Live sessions on obesity. As you rightly said, today is the World Obesity Day, and the theme for this year's World Obesity Day is changing perspectives, talking about obesity, and that's exactly what we are doing. And today we're going to specifically focus on obesity in India. And बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि क्यों इंडियन पेशेंट्स में या इंडियन जो लोग हैं उनकी ओबेसिटी बाकी लोगों से काफ़ी डिफरेंट होती है. एंड several reasons, right from the quantum of fat content, अगर उसकी बात की जाए तो नवजात शिशु से लेके एल्डरली पर्सन तक हमारा जो फैट कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है वेस्टर्न पॉपुलेशन से. ओवरऑल हमारी डाइट काफ़ी डिफरेंट है, हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी पैटर्न्स डिफरेंट है, हमारी फैट डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, हमें कम मोटापे पे ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होने का चांस रहता है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेसिफिकली डीलिंग विद the Indian phenotype of obesity, and I think it's a great event. Over to you, Dr. Alankar. Thank you so much, sir. So now starting our session, and my first question to you, Nitin sir, like as you have said about the obesity and overweight, especially in Indian scenario. So first of all, I would like to know that how do we define obesity, or we can say how do we say that a person is obese or overweight. कैसे हम यहाँ बोल सकते हैं अपनी कंट्री में स्पेशली कि हाँ ये पर्सन ओबीस है या ओवरवेट. Right, I think that's a very important question. Overall, अभी तक जैसे आपने बोला कि सब लोग जो भी थोड़े ज़्यादा वजन वाले हैं वो खाते पीते घर से हैं. We've never really understood so far that obesity is actually a chronic disease, and this is very, very important. And now WHO has defined obesity in a very good way. And वो कैसे define करते हैं? बोलते हैं कि presence of any abnormal or excessive fat in the body which has an impairment on the health. तो जब भी हमारे बॉडी में किसी प्रकार का फैट
जो ज्यादा क्वांटिटी में है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, दैट इज व्हाट इज ओबेसिटी. एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट एनी नंबर, इट्स जस्ट नॉट अबाउट any kind of appearance, but excessive fat which affects health. Though most commonly हम obesity measure करते हैं BMI से. एंड जितने भी अगर ज्यादा सिंपल तरीका, हमारे जितने भी व्यूअर्स आज ज्वाइंड है, अगर उनको जानना है कि वो ओबीस हैं या नहीं, एक बहुत ही सिंपल तरीका है, अपना हाइट मेजर करिए सेंटीमीटर्स में, उसमें से 100 निकाल दीजिए, और अगर आपका वजन उससे ज्यादा है तो शायद ओबेसिटी है. पर डिटेल में हम आगे बात करेंगे कैसे ओबेसिटी मेजर करते हैं. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनी excess amount of fat that is present in the body which impairs your health is defined as obesity. Thank you, sir. Thank you, sir, for such an elaborate answer. Now, moving to our second question to Dr. Raghu, sir. Sir, is our Indian population any different from Western country or other population in respect to the risk for obesity? Yeah, it's a good question. Especially, we are different phenotype compared to the Western population. There's a special phenotype called Asian Indians. So we have a more obesity towards abdomen. हमारा पेट ज़्यादा रहता है, हाँ. लेकिन with the Western world पूरा का पूरा शरीर टॉप टू सिलेंडर रहता है, लेकिन हमारा क्या होता है, कोन हो जाते हैं हम लोग. So it's basically more obesity around the abdomen, and that is more dangerous actually. The fat tissues around the abdomen and the liver and the visceral tissues leading to a lot of complications. Fatty liver करेगा और डायबिटीज जल्दी आ सकता है. सो यही हमारा कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड हमारा डिफरेंस है. Okay, thank you so much, sir. Now, moving to third question to Dr. Abhilasha, ma'am. Ma'am, what are the as we have talked about our being more at risk for obesity, then what are the common causes for obesity in our population? Ma'am, kindly unmute. तो बहुत सारे कारण हैं जो काफ़ी तो कॉमन है, जो हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ सेम है. बट इवन अभी जैसे अभी हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं, तो इंडिया का जो कल्चर है काफ़ी वेस्टर्नाइज हो रहा है. जो हमारा डाइट है काफ़ी वेस्टर्नाइज हो रहा है. एंड तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ओबेसिटी का जो इंसिडेंस है, प्रेवलेंस है, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. और हमारी जो डाइट जो है वो उसका जैसे खाना बनाने का तरीका, या जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रोडोमिनेंट है. काफ़ी सारी स्टडीज़ जो हैं वो भी बताती हैं कि जो हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, रोटी है, जो हमारा जो स्टेपल है रोटी और चावल है, विच इज़ नॉट देयर इन वेस्टर्न कंट्रीज. तो इससे काफ़ी ज़्यादा ओबेसिटी का चांसेस रिस्क बढ़ता है. डाइट में प्रोटीन का अमाउंट बहुत कम है, सिग्निफिकेंटली कम है वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से. एक जो सेटाइटी की फीलिंग होती है वो नहीं आती है, और तो उससे भी हमारा वेट इंक्रीज होने का रिस्क रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो वर्किंग आवर्स हैं, उसकी वजह से भी ओबेसिटी का इंसिडेंस स्पेशली इंडियंस में काफ़ी बढ़ रहा है. और जैसे अभी तक बात करी, हमारे जो जेनेटिक्स हैं, दीज आर ऑल्सो लिटिल डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न पॉपुलेशन. तो हमारा जो मेटाबॉलिक फैट है या जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है, वो इवन कम खाने के ऊपर भी इट इज़ मोर. और अगर ओबेसिटी इवन एट द सेम BMI, अगर मेरा BMI 25 है और एक कॉकेशियन पॉपुलेशन का भी 25 है BMI, जो सर ने बात करी, तो उसके ऊपर भी हमारे में कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क काफ़ी ज़्यादा है. तो ओवरऑल काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं इंडियन पॉपुलेशन में, जो हम हाई रिस्क पॉपुलेशन होते हैं. Okay, ma'am. Thank you so much. Now moving to Dr. Akash. Dr. Akash, is there any gender difference or disparity if we talk about the occurrence of obesity? क्या मेल फीमेल में कुछ ऐसा होता है क्या? Yes, Dr. Alankar, there is definitely gender disparity seen as per the data. So male female या आदमी और औरत में ओबेसिटी का प्रमाण में चेंजेस या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. दैट इज सीन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज. दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में भी देखा गया है, और इंडिया में भी. एज पर दी सर्वे 2020 का सर्वे के हिसाब से अराउंड 25% वीमेन, दैट मीन्स 4 में से 1 महिला को ओबेसिटी
जबकि आदमी में 5 में से 1 आदमी को ओबेसिटी का चांस रहता है। तो डिस्पैरिटी रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेल्स या आदमी थोड़ा कम रिस्क पे है। एवरीवन इज एट रिस्क अगर लाइफस्टाइल और डाइट प्रॉपर्ली फॉलो ना किया जाए। जहां तक बात है फैक्टर्स लीडिंग टू दिस, इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो इट इज मल्टीफैक्टोरियल। बहुत सारे फैक्टर्स इस पे अफेक्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक कंपोजिशन ऑफ द बॉडी। फीमेल्स में यूजुअली बॉडी फैट परसेंटेज प्रोपोर्शन वाइज ज्यादा रहता है, सो थोड़ा इम्बैलेंस बिटवीन डाइट एंड लाइफस्टाइल रहने से हायर रिस्क ऑफ रैपिडली गेनिंग वेट। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टेन लाइफ इवेंट्स एंड हार्मोनल चेंजेस जैसे मेनोपॉज के टाइम या फिर प्रेगनेंसी के टाइम देयर इज हायर रिस्क ऑफ गेनिंग वेट। ऑल्सो certain social factors and psychological aspects और mental health issues. Sometimes we see कुछ महिलाएं हमें देखने को मिलती है जिनमें एज अ स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म, उनको स्ट्रेस या इमोशनल जब इश्यूज क्रिएट होते हैं तो कोप करने के लिए दे टेंड टू टेक मोर फूड, एंड दिस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टिल सम एक्सटेंट टू ओबेसिटी मोर प्रेवलेंट इन women. Okay. Thank you, Dr. Akash. Now, next question is to Dr. Nitin sir again. Sir, will you tell us about the current epidemiological status of obesity in India? A slightly factual question. And another thing is there a rise seen in the prevalence of obesity in our country? क्या पहले से कुछ ऐसा है कि ओबेसिटी का जो ट्रेंड है, इंसिडेंस प्रेवलेंस है, वो हमारे कंट्री में बढ़ रहा है पहले से? अगर ऐसा है तो क्यों? Right. So it is a factual question, but I think it's still very important to know. And when we published last year data from National Family Health Survey, उसमें obesity का prevalence जब study किया, so it was quite a startling data. And what we know today is that about 35 to 40% of the Indian population is either overweight or obese. 35 to 40%, मतलब अगर हम 100 लोग ये आज फेसबुक लाइव सुन रहे हैं तो हम में से एक में से मतलब 3 में से 1 जने को ओबेसिटी है. So that is something that is so common. It has definitely increased several folds. Maybe I remember 7 or 8 years ago हमने वेल्लोर में एक स्कूल में स्टडी करी थी जिसमें 300 बच्चे देखे थे. उसमें prevalence of obesity that time also was 30%. And believe me, Vellore is not a very big city. It is like a 2-tier city. 2-tier भी मुश्किल से, and उसमें भी इतनी ज्यादा obesity. And when we looked at data from Vellore birth cohort, जिसमें मतलब 1970 से हम सारे जो भी लोग पैदा हुए उस साल उस सबको फॉलो अप कर रहे हैं हर 10 साल में. एंड देखा जाए तो लास्ट 10 years में देयर इज एन इंक्रीज ऑफ अप टू 50 to 60% in the prevalence of obesity. And again, as Dr. Akash said, the increase is more in women. So definitely the prevalence of obesity in Indian standard cutoffs, it's huge. 30% is a very big figure for any disease state in the country. It is rapidly increasing, more in metropolitan cities, more in women. कारण क्यों बढ़ रहा है? As Dr. Abhilasha ने बताया, हमारी diets are getting more westernized. We are genetically prone for wrong distribution of fat, but उसके साथ जब environmental influence काफी बढ़ जाता है तो फिर we get more severe obesity. And I think in the last few years, the pandemic of COVID has also influenced obesity in a very big way. And काफी लोग लॉकडाउन में घर पे रहे, फिजिकल एक्टिविटी बंद रही, खाने पीने का कोई नियम नहीं था, एंड आई थिंक उससे भी काफी ज्यादा ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ गई है. So yes, 30 to 40% of the Indian population is overweight or obese as per the National Family Health Survey data published last year. That is quite a huge number, sir, and that is quite an alarming. Thank you, sir. Now moving to the next question, to Raghu sir. Sir, how early obesity can affect a person? Means what is the earliest age? किसी को भी सबसे पहले कौन सी एज, अर्ली एज है जिसपे कि ओबेसिटी इफेक्ट हो सकता है उस व्यक्ति को? So there is no age bar actually. Even we have seen children's infancy also obesity starts. So there are a lot of genetic causes are there. वहाँ पे genetic कारण से वैसे childhood में obesity होता है, infancy में obesity होता है. Like for example, Bardet-Biedl syndrome, Prader-Willi, ये सब होता है. Even adulthood में होता है. But as sir Nitin sir told that, so lot of because 30% of kids also having obesity.
1 in 3 obesity is there. Another thing is COVID situation has made things from worse. It has become worse actually because people have become more sedentary. And when you look back, when I was in a kid, actually I used to travel for 3 to 4 minutes by walking only for the school. But nowadays, no one walks, and our routine activity has gone actually. And the reason is for obesity, childhood obesity, is basically we are food is not a costly, and even car is not a luxury. People are using all the vehicles for the travel and all. This has led to our reduction in the physical activity. हम काम ज़्यादा कम करते हैं, दिमाग का काम ज़्यादा करते हैं. Even kids are becoming stressed actually. So the stress is the cause for childhood obesity. Lot of homework देते रहते हैं, बच्चे बस लिखने में रहते हैं, लेकिन काम तो नहीं कर. It's basically more of mental stress than a physical activity. And genetic causes we cannot prevent. Somehow we can manage, but we cannot prevent. But mainly the environmental factors. Environmental factor is the one which we can prevent, but we are not doing it. Even after I see a patient with a obese patient like a 5 or 6 year type 2 diabetes patient almost less than 10 years. Really, when you see a type 2 diabetes patient less than 10 years is basically that is an alarm thing. And कितने means even बोलने के बाद भी patient attendance change नहीं होते. So when I'm talking to a parent, so he was a laborer actually. He bought his kids, both are obese, they have severe acanthamus nigricans. That's one sign. So मैंने उसको पूछा, क्यों यार आप लोग तो मजदूर काम करते हो, लेकिन बच्चे क्यों मोटे? सर हमने तो काम बहुत कर लिया, हमारे बच्चे ठीक होने हैं. मैंने कहा यार आप तो काम किया इसलिए तो एटलीस्ट तो ठीक हेल्थी हो, लेकिन आपको बच्चे को काम तो सिखाओ एटलीस्ट, तब तो ठीक होगा ना. हाँ, हेल्थ इज वेल्थ, बट द परसेप्शन हैज टू चेंज because obesity is the root cause for all the whatever the like hypertension, diabetes and cardiac disease. We have to educate from the root. Yes sir, very well explained. यानी चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है आजकल, जो हमने बोला कि कितनी अर्ली एज पे स्ट्राइक कर सकती है ओबेसिटी, तो किसी भी मतलब बचपन से कर सकती है. 3 से 4 साल के भी बच्चे आजकल आते हैं हमारी क्लिनिक्स में जिनको भी ओबेसिटी रहती है, ओबीस रहते हैं. ऐसे ही एक पेशेंट मेरे पास भी आया था और बच्चे को he was around 8 to 9 years old. उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे कि सर वजन बढ़ रहा है, फिर भी ये जो है मानता नहीं है, बहुत कुछ जंक्स और ये सब खाता है. मैंने कहा कि आप लोग मत दिया करो, घर में जो है हमेशा खाता रहता है, उसे खाने का बहुत ज्यादा वो रहता है. तो मैंने कहा मत करो, मत खाने दीजिए ये सब चीजें मत. तो उन्होंने बोला कि सर अगर हम नहीं खाने को देते हैं तो ये पड़ोसी के घर जाके खाना मांग के खा लेता है, कि अब मुझे वहां जाके खाना. तो बच्चों का बड़ा सारा ये है. और एज यू हैव राइटली सेड दैट ये चीजें बहुत ही तकलीफ दे है. और बात है कि पेरेंट्स को ये चीज समझना बहुत जरूरी है. जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं कि हम तो मजदूर है, बट वी वांट टू गिव आवर चिल्ड्रन अ गुड लाइफ. तो भाई जैसे मैंने शुरू में बोला था ना कि स्टिल इट इज सीन एज अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी ना ओबेसिटी. तो ये कॉन्सेप्ट और ये वाली जो है वो हमें चेंज करने की जरूरत है. Thank you, sir. Now moving to this, our next question to Dr. Abhilasha, ma'am. Ma'am, are there any hormones involved behind this occurrence of obesity? I mean to say any endocrine etiologies of obesity? Most of the causes जो ज़्यादातर जो अभी तक हमने डिस्कस किए जो होते हैं, डाइट और एक्सरसाइज जो या लाइफस्टाइल जो होता है हमारा मैक्सिमम रीजन बिहाइंड ओबेसिटी ये होता है. But at times, definitely, there are endocrine causes. There are other problems, medical problems, जिसकी वजह से definitely weight बढ़ सकता है, obesity आ सकती है. One of the very common cause जो है, हम at least हमें OPD में सुनने को मिलता है कि मेरे को थायराइड है तो मेरा तो इसलिए कभी weight कम नहीं होता है. So I would like to really point out here that कि थायराइड से ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट obese हो जाएगा. सबसे बेचारा कल thyroid. It is such a big myth and I think हम लोग हमेशा डिस्कस भी करते हैं इसके बारे में. At maximum मैं अपनी ओपीडी में भी पेशेंट्स को यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि even in overt hypothyroidism, overt हम उसको बोलते हैं जब आपका T3 T4 भी बहुत कम हो गया है, TSH is way high, TSH आता है it is 50s, it is 100s. Even उस केस में भी आपका जो weight gain होता है maximum because of fluid retention, because of other reasons, up to maximum up to the tune of 3 kilos, 5 kilos, that is it. But yes,
ये चीज हमें समझना जरूरी है कि जैसे कुछ लोग आते हैं, मेरा TSH5 है, मेरा TSH6 है, मेरे को इसकी वजह से आई कैन नॉट लूज वेट, सो इट इज नॉट ट्रू। ये हमें यहाँ पे पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो ऐसे में अपार्ट फ्रॉम थायराइड बहुत सारे एक्चुअल एंडोक्राइन कॉजेज हैं जिनमें एक्चुअली में ओबेसिटी होती है, काफी रेयर होते हैं। जैसे कुशिंग सिंड्रोम है, जिसमें देयर इज अ हार्मोनल एक्सेस जिसकी वजह से मोटापा आता है, पेट का मोटापा होता है, एक कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन होता है जिसके बढ़ने की वजह से होता है। स्ट्रेच मार्क्स काफी सारे बॉडी पे आते हैं। इसके और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो आपको, अगर ऐसा दिखता है, ये सिम्टम्स आते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए रहता है। या और भी बहुत सारे एंडोक्राइन कॉजेज हैं, जैसे कि कुछ हार्मोन्स की डेफिशिएंसीज में भी ओबेसिटी या वेट गेन होता है। पिट्यूटरी के कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनकी कमी से वेट गेन होता है, बट दीज आर वेरी रेयर कॉजेज। तो एक तो होता है कि एंडोक्राइन कॉजेज की वजह से ओबेसिटी हो रही है, एक ओबेसिटी की वजह से भी कुछ हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का एक क्यू लेके पॉइंट आउट करना चाहूंगी। एक PCOD के बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी। ओबेसिटी से डेफिनेटली डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं। ये हम बात भी करते रहते हैं, आजकल लोगों को काफी पता भी चल गया है इसके बारे में। बट PCOD भी एक हमें इसके यहाँ पे बात करने की जरूरत है। रिसेंटली मैं एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट पढ़ रही थी, तो वहां पे था कि आजकल बड़ा बॉडी शेमिंग का आ गया है कि नो ओबेसिटी इज ओके, यू शुड नॉट बॉडी शेम एंड ऑल। आई टोटली अग्री, यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर स्किन, यू शुड बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव। बट जब वो मेडिकल प्रॉब्लम्स कर रहा है, अगर उसकी वजह से PCOD हो रहा है, अगर उसकी वजह से कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, आपके टेस्टोस्टेरोन, DHA, जो भी हार्मोन्स PCOD के साथ जैसे एसोसिएटेड होते हैं, वो डिरेंज हो रहे हैं, तो उस समय हमें उसको डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए। वी कैन नॉट रियली से कि नहीं, ये इट इज ओके, बॉडी शेमिंग इज नॉट गुड एंड हाँ, मतलब टीजिंग सही नहीं है इसको लेके, बट वो उसे एड्रेस तो करना जरूरी है ना, बिकॉज एड्रेस डेफिनेटली आप, यू शुड बी कंफर्टेबल इन इट। बट अगर वो मेडिकल इश्यूज कर रहा है तो डेफिनेटली आपको उसका ट्रीटमेंट या उसको एड्रेस करना चाहिए। So definitely there are endocrine causes which lead to obesity, and obesity also leads to few endocrine diseases. So ये चीजें हैं। Thank you so much, ma'am. Then moving to next question to Dr. Akash. Dr. Akash, now we have discussed about the etiologies and other things about the obesity. So as ma'am have said that obesity in turn can cause many other disorders. So I will ask to elaborate to you that what are the consequences or complications which obesity can lead to in longer run. राइट। सो जैसे अभिलाषा मैडम ने और रघु सर ने पहले ही पॉइंट आउट किया, मेंशन किया, वैसे ओबेसिटी लॉन्गर रन पे, बिकॉज जब ड्यूरेशन बढ़ता जाता है तो ओबेसिटी लीड्स टू सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस एंड सर्टेन अदर डिसीजेस। तो वन ऑफ विच कॉमन इज डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 डायबिटीज, जो काफी कॉमन है। बहुत लोगों ने, हमारे व्यूअर्स में भी सुना होगा, शायद सबके फैमिली में भी कोई ना कोई क्लोज मेंबर, रिलेटिव होगा जो ये बीमारी से इसका फाइट बैटल कर रहा होगा डेली बेसिस पे। तो टाइप 2 डायबिटीज है जिसमें ओबेसिटी से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। लॉन्गर रन पे इवेंचुअली बॉडी का कैपेसिटी कम होता जाता है उसको कंपेंसेट करने का, एंड शुगर फिर बढ़ने लगता है। अपार्ट फ्रॉम दिस PCOS रहता है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के अलावा और भी हार्मोनल इम्बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस भी होने लगता है, एंड अल्टीमेटली PCOS फीचर्स, दैट इज इरेगुलर साइकिल्स, फिर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, एक्ने वगैरह हो सकता है, एंड इनफर्टिलिटी इश्यूज भी फेस करते हैं। देन देर आर सर्टेन रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स जैसे कि अस्थमा या ब्रीदिंग डिफिकल्टीज रहते हैं पेशेंट को, उससे एक्सरसाइज लिमिटेशन होने लगता है। देन कार्डियोवास्कुलर इश्यूज जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर होना, वो भी कॉमनली देखा जाता है ओबेसिटी के एसोसिएशन में। एंड सर्टेन मेंटल इश्यूज, जैसे पहले ही बात हुआ, बॉडी शेमिंग रहता है। एट द सेम टाइम सम पेशेंट्स है इंटरनल फीलिंग, उनको बॉडी इमेज डिसऑर्डर्स भी होने लगते हैं जिसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन भी फेस करने पड़ते हैं। एंड समटाइम्स कॉमन नहीं है बट रेयरली कैंसर्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर, जो कि ओबेसिटी के साथ में पाए गए हैं। सो आज का जो डिस्कशन है, ओबेसिटी
जिसको एड्रेस करना, उसके बारे में अवेयरनेस लाना एंड मैनेज करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लॉन्गर रन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जुड़े हुए हैं ओबेसिटी के साथ. Thank you, Dr. Akash. Now, my next question to Dr. Nitin, sir. Sir, as we have already discussed in the starting that what is obesity and whom we classify as obese. Now, I will like to request you to describe that how do we measure or quantify the obesity and its severity? What are the methods available with us? Right. So I think there are several ways of assessing obesity to try and find out whether a patient has obesity or not. There are several methods. The most common one, which is used worldwide, is known as BMI or body mass index. उसको कैसे measure करते हैं? We just measure the weight of the patient in kilograms and height of the patient in meters, and weight divided by height square. उससे हमको जो value मिलती है, this is the body mass index. It is said to be normal for an Indian person if it is less than 23, less than equal to 23, but 23 से ज़्यादा है और 25 से कम है तो हम overweight कहते हैं, और more than equal to 25, we will quantify that patient or person to have obesity. Well, BMI is the most common one, though उसकी भी अपनी अलग controversies हैं. जैसे पहले बताया कि हमारे इंडियन फिनोटाइप में मोटापा जो है वो ज्यादातर पेट के आसपास होता है, and therefore waist circumference is another important parameter to assess obesity. Waist circumference of more than 90 centimeters in men and more than 80 centimeters in women is said to be abnormal, and that is the second important marker for assessing obesity. इसके अलावा इन दोनों कॉमन तरीकों के अलावा there are several other parameters जिससे derive किए जा सकते हैं. वेस्ट हाइट रेशियो, वेस्ट हिप सर्कमफ्रेंस, वो सब इतना आजकल यूज नहीं करते, बट आजकल और कुछ नए प्रकार के मेजर्स हैं जिससे हम ओबेसिटी मेजर कर सकते हैं. उसमें बॉडी फैट परसेंटेज असेस करना, ये काफी प्रकार से असेस किया जा सकता है. सिंपल बायो इम्पीडेंस मशीन से इसको हम देख सकते हैं, या फिर डेक्सा स्कैन हो, या कुछ हाई एंड रिसर्च सेंटर्स में MRI एंड CT स्कैन से भी बॉडी फैट परसेंटेज देख सकते हैं. इसमें जो कट ऑफ्स हैं उसमें काफी कंट्रोवर्सी है, बट मोर और लेस अगेन in men more than 25%, in women more than 30 to 35% is said to be abnormal total body fat. इसके अलावा और भी तरीके हैं ओबेसिटी मेजर करने में, स्पेशली अगेन वी आर टॉकिंग ऑफ ओबेसिटी इन इंडिया एंड इंडियन सेटिंग्स में. जब पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में आते हैं, हमारी ड्रेसिंग्स काफी एथनिक हो सकती है, स्पेशली इन वुमेन दे कैन बी वेयरिंग साड़ीज, वेरी डिफिकल्ट टू मेजर वेस्ट सर्कमफ्रेंस. तो उसके ऑल्टरनेटिव्स अभी रिसर्च में काफी पता हुए हैं, जैसे नेक सर्कमफ्रेंस, गले का सर्कमफ्रेंस, या रिस्ट सर्कमफ्रेंस, कलाई का सर्कमफ्रेंस, इसको भी देखा जा सकता है. नेक सर्कमफ्रेंस हैज आल्सो बीन स्टडीड वेल इन इंडिया. उसमें देखा जाता है अगर नेक सर्कमफ्रेंस इज मोर देन 35 centimeters in men or more than 32 centimeters in women, that is said to be correlated with metabolic syndrome and obesity. So there's several methods to assess obesity. The most common still remains body mass index. कैसे measure करते हैं? Weight in kilograms divided by height in meters, height का square, and जो भी value अगर आपकी 25 से ज़्यादा आ रही है तो फिर that is diagnostic of obesity. थैंक यू सर, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपने बताई है अभी. Now moving to the next question to Dr. Raghu. Sir, just like that we have discussed some, that we know that obesity is mainly a lifestyle disease. Then we have discussed some hormonal causes of the disease. But I would like to know that are there some medications or medicines which we use for some other diseases which can cause obesity in a person, or we can say weight gain in a person? Yes, it's a good question. There are certain drugs which cause weight gain, क्योंकि वो weight gain उसका साइड इफेक्ट होता है. कॉमनली जो होता है स्टीरॉइड्स तो आजकल वो बहुत सारे लोग ओवर द काउंटर लेते हैं. They usually take the steroids like prednisolone, betnazole, betamethasone, and dexamethasone tablet. They tend to gain weight. Even when we treat rheumatoid arthritis or some autoimmune diseases with the steroids, so those patients tend to have a weight gain. Usually, they have more of abdominal obesity and harmonic of face swelling, puffiness. And other drugs, commonest drugs are other drugs are this thing, psychiatric drugs. That's the commonest thing. Antidepressant and also antipsychotics. Like antidepressant, commonly tricyclic antidepressant, amitriptyline,
nortriptyline, and SSRIs, escitalopram. So these can cause weight gain. Whenever दवाई की वजह से वेट गेन बढ़ता है, वजन बढ़ता है, तब उसको साइकियाट्रिस्ट को पूछना पड़ेगा पेशेंट, क्योंकि शिफ्ट कर सकते हैं जो ड्रग वेट न्यूट्रल ड्रग है उसको शिफ्ट करने के लिए बोलना पड़ेगा, अदरवाइज पेशेंट विल पुट ऑन वेट एंड बिकम ए diabetic patient. Other rarely some like even antihistaminics which increase the appetite, cyproheptadine or which increase the appetite, because of that also patient tend to gain weight. So these are the commonest drugs which are causing weight gain. ओके सर, यानी these कुछ मेडिसिन्स भी हैं जिनकी वजह से शायद वेट गेन होता है, बट अगर किसी को ज्यादा हो रहा है तो he should consult his doctor, treating physician or psychiatrist, whatever, and ask for some substitution of that medicine, I think. Thank you, sir. Now, my next question to Abhilasha ma'am. Ma'am, these are the reasons, various reasons, but we have already discussed that there are some genetic factors involved also in the obesity. So can you please tell me what are the genetic factors, or how important is the genetic factor in occurrence of obesity? बिल्कुल, डॉक्टर ने पहले शुरुआत में बताया कि बच्चों में स्पेशली हमें जेनेटिक फैक्टर्स को देखना चाहिए, जो कम उम्र में, बिल्कुल जैसे 8 महीने का बच्चा भी हमारे पास कई बार आता है जिनको बहुत ज्यादा वेट गेन होता है। 8 महीने की उम्र में आई हैड 3-4 months बैक आई हैड अ किड, मेरी ओपीडी में आया था, ही वाज 9 months ओल्ड एंड उसका वेट था 27 kgs। सो ऐसे केसेस में आप वहां पे सोचोगे कि कोई जेनेटिक कॉज तो नहीं है, तो यूजुअली 95% केसेस में जेनेटिक कॉज नहीं होता है, इट इज ऑल आवर लाइफस्टाइल, डाइट एंड अदर एंडोक्राइन कॉजेस। वेरी रेयरली 5% केसेस में एडल्ट्स में, और हम सोचेंगे अगर बच्चों की बात करें तो उसमें 100 में से 30 केस एंड 30% केसेस में हमें एक जेनेटिक कॉज मिलता है। तो उनमें हमें शुरू से देखना होता है कि ये जो बहुत कम उम्र में 1 साल से कम, 2 साल से कम के बच्चों में अगर बहुत एक्सेसिव मोटापा है, फैमिली हिस्ट्री उनकी कुछ ऐसा है कि जिनमें कुछ ऐसा हर जनरेशन में कहीं पे काफी ज्यादा मोटापा है, और भी काफी एसोसिएटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें एसोसिएटेड इश्यूज हमें दिखते हैं। कोई विजन प्रॉब्लम है, कोई ग्रोथ की प्रॉब्लम है, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी सही नहीं है। तो ये काफी सारे सिंड्रोम्स हैं, काफी सारे जेनेटिक जीन्स होते हैं जो एक हमारी बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म को, एपेटाइट को, सेटाइटी को कंट्रोल करते हैं। इनमें से किसी भी एक जीन में प्रॉब्लम होती है तो एक उसे जेनेटिक ओबेसिटी एक मतलब हमें एक रीजन मिल जाता है, और उसको उसके रिलेटेड हम एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये एक ठीक एक फेसबुक लाइव एक ठीक माध्यम नहीं है इतना डिटेल में जाने के लिए, बट ऐसे केसेस में डेफिनेटली आप एक अपने स्पेशलिस्ट के पास जाकर के वहां से हम इसका इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बट कॉमन जो हम देखते हैं, जैसे हम फैमिली में देखते हैं कि हम पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में आते हैं, यंग है, 30-35 ईयर, 40 ईयर्स, एंड देन जैसे कि मेरे पेरेंट्स भी मोटे थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी मोटे थे, मैंने भी आफ्टर द एज ऑफ 25 ईयर्स काफी सारा गेन किया, आई हैव अ टेंडेंसी टू गेन वेट। तो एक देयर आर सम जीन्स इन्वॉल्व्ड इन दैट, बट हालांकि ये काफी एक ग्रे जोन है, कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं नहीं है, बट यस इट इज अ फैक्ट कि अगर फैमिली में मोटापा है तो बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से इवन यू आर प्रोन टू हैव ओबेसिटी और यू आर प्रोन टू गेन वेट। सो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले जीन्स होते हैं ये काफी सारे, तो डेफिनेटली जेनेटिक फैक्टर्स तो होते हैं। बट अगेन आई विल लाइक टू पॉइंट आउट हियर दैट जेनेटिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। मैं ओपीडी में भी पेशेंट्स को बोलती हूँ, जीन्स को हम चेंज नहीं करते, व्हाटएवर वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम आवर पेरेंट्स वी हैव रिसीव्ड इट, बट व्हाट यू कैन चेंज इज योर लाइफस्टाइल एंड हाउ यू लुक एट इट। सो ये इम्पोर्टेंट। Now my question to Dr. Akash, as we have earlier discussed this thing, as Abhilasha ma'am has said that genes are involved and some they are कि वो कहते हैं कि मेरे तो सब फैमिली में भी लोग मोटे थे और सब कुछ होता है। तो ऐसा देखने में आता है, बहुत से लोगों की क्वेरी होती है, वो कहते हैं कि नहीं मैं तो बहुत कम खाता हूँ बट फिर भी मैं पता नहीं क्यों मेरा वजन बढ़ा रहता है, या कुछ कहते हैं, कुछ लोग
वो तो खुद नहीं कहते, बट कई लोग कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा खाते हैं बट फिर भी इनका वेट नहीं बढ़ता, इनको क्या गॉड गिफ्ट मिला वैसे। तो क्या ऐसा होता है, और ऐसा अगर होता है तो क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई थिंक हम सब ने, जितने भी डॉक्टर्स ओबेसिटी ट्रीट कर रहे हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन एंड ऑल अदर स्पेशलिटीज, आई थिंक 7 या 8, 10 में से 7 या 8 पेशेंट आके ऐसे बोलेंगे कि मेरा वजन बढ़ता जा रहा है लेकिन मैं तो कम खाता हूँ, कम खाती हूँ। मेरे फैमिली मेंबर्स, यस यस एग्जैक्टली, मेरे फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के हिसाब से उनकी तुलना में माय डाइट इज वेरी लेस, और वी कंज्यूम इक्वल, बट फिर भी मेरा बढ़ता है, उनका नहीं बढ़ता है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन परसेप्शन। नाउ इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि मैडम अभी डिस्क्राइब कर रहे थे। एक रहता है जेनेटिक्स का रोल, ओवरऑल बॉडी का बंधारण भी इसमें पार्टिसिपेट करता है कि ओवरऑल इंसान का, फॉर एन इंडिविजुअल, जितना डाइट इनटेक हो रहा है, जितना कैलोरी जा रहा है, और सामने जितना वो बर्न करता है विद रूटीन एक्टिविटी एज वेल एज एक्सरसाइज, उसके बाद जो फाइनल वेट पे इम्पैक्ट आएगा वो डिफर करता है। अदर देन दैट, एक है कि मेटाबॉलिज्म। किसी इंसान का मेटाबॉलिज्म ज्यादा रहता है तो रिलेटिवली कम एक्सरसाइज पे भी उसका ज्यादा बर्न हो जाता है, वेरेस कुछ इंसानों का मेटाबॉलिज्म रिलेटिवली कम रहता है, सो दैट उनका कैलोरी इंटेक थोड़ा ही आउट ऑफ प्रपोर्शन जाने से उनका वेट रैपिडली गेन होने लगता है। ऑल्सो सबका लाइफस्टाइल डिफर करता है। अगर मैं खुद को कोई आर्मी जवान से कंपेयर करूंगा और उनके साथ बैठ के हर रोज 7-8 रोटी खाऊंगा, उनका वेट तो वैसा ही रहना है, मेरा वेट तो बढ़ना ही है। सो दिस ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर कि सबका लाइफस्टाइल, सबका एक्सरसाइज लेवल भी अलग अलग चलता है। एंड देन लास्ट बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपोजिशन ऑफ द फूड। हम कैसा खाना खा रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो जंक फूड अभी बहुत चलन में है, लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, स्पेशली और यंग जनरेशन, और एल्स जो प्रोसेस्ड फूड रहता है या सिंपल शुगर एडेड फूड रहता है, बेवरेजेस रहते हैं, ऑल दिस थिंग्स, उससे वेट ज्यादा बढ़ने का चांस रहता है। सो वी नीड टू कंसिडर ऑल द फैक्टर्स एंड ऑफ कोर्स ये बात ज्यादा दिमाग में नहीं लाना है कि हम तो बहुत कम खा रहे हैं फिर भी वेट गेन हो रहा है। एवरी पर्सन, एवरी पेशेंट जो वेट का बैटल अभी स्ट्रगल कर रहा है शुड गो एंड डिस्कस विथ ओपन माइंड। डॉक्टर के साथ खुले दिमाग से डिस्कस करना चाहिए, ना कि पहले से ही दिमाग बना के नहीं मैं तो नहीं खा रहा हूँ, मेरा वेट नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा बताया आपने डॉक्टर आकाश। आई होप कि लोग ये चीज समझें और ये परसेप्शन उनका चेंज हो। Now we will take some queries and questions from our audience listeners. First question is to Dr. Nitin sir. He has asked that why most of the young adults suffering from obesity, and what is the underlying etiology in the young adult group? I think we have already discussed, but still. Yeah, so since we've already discussed, as was mentioned before, so we have a genetic predisposition. We may have a genetic predisposition for obesity, and that's why people in the family are overweight or obese. And उसके साथ हमारा lifestyle जब खराब होता है, तो फिर with that genetic predisposition, we tend to gain weight. There's several factors. It's not that easy, but as Dr. Abhilash had very rightly mentioned, what is in your hand is not your genetics, but your environment, and that is something that we have to look at. Okay, thank you, sir. Now, next question to Dr. Raghu, sir. Does obesity is always reversible with diet and correction of underlying endocrine etiology without surgical approach? No, the endocrine, when you treat the endocrine cause, definitely weight gain is somehow it's reversible. After treating a Cushing's syndrome, even the Cushing's syndrome, the patient can regain his normal weight. Another thing is even hypothyroidism also, maybe the weight gain is only 1 or 2 kgs. As Abhilash rightly said, that is also reduced after treating the hypothyroidism. And even so, the drugs which is causing obesity, that also when you change it, that also can cause reverse the weight gain. Okay, sir. Thank you. Dr. Abhilasha ma'am, another question from audience is that does the postpartum obesity is reversible? The obesity which occurs after the childbirth. फीमेल्स में एक ये बहुत important factor है obesity का. All the females, in fact, most of the females would gain weight during pregnancy, and being a female myself, I think it is very difficult to lose a postpartum weight. It is really hard. So it is reversible. Again,
you have to look at your diet, you have to look at your lifestyle, exercises, and if you जो एक नेगेटिव बैलेंस एनर्जी का होता है कि आपका जो नंबर ऑफ कैलोरीज यू हैव हैड एंड द नंबर ऑफ कैलोरीज यू हैव बर्न, जितना आपने खाया है उससे ज्यादा अगर आप बर्न करोगे तो धीरे धीरे करके यू विल टेंड टू लूज वेट. So that holds true for any kind of obesity, and that holds true for postpartum obesity as well. बिल्कुल मैम, क्योंकि ये चीज़ आपने जैसे बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फीमेल्स, दिस पोस्टपार्टम ओबेसिटी, दे आर वेरी मच कंसर्न. और ऐसा होता है कि अभी कुछ दिनों पहले एक पेशेंट आए थे हमारे यहाँ, तो दैट लेडी वाज ओबीस. एक्चुअली ही हैज ऑलरेडी हैड बेबी 4 to 5 years back, बट स्टिल शी वाज ओबीस. बट वो कह रही थी कि नहीं, जब से बच्चा हुआ तब से मैं मोटी हो गई, और वही मोटापा मेरा अभी तक चल रहा है. ही वाज जस्ट, वो पूछ रहे थे अपने बच्चे को, हस्बैंड को, कि इसी वजह से मैं मोटी हूँ. तो क्या ऐसा होता है कि क्या इतने साल तक वो उसी वजह से ओबीस रहेगी? तो लूज करना भी बहुत जरूरी है, करना भी जरूरी है. के बाद भी जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं इंडिया में स्पेशली, जैसे अभी भी हमने बात करी, जो इंडिया की डाइटरी प्रैक्टिसेस बिल्कुल अलग है. जो पोस्टपार्टम स्पेशली तो नॉर्मल डिलीवरी होगी तो दे विल गिव यू सो मच ऑफ घी इन ईच मील. आपको मतलब जो फीमेल जो लिसनर्स हैं हमें सुन रहे होंगे, दे वुड एक्चुअली कोरिलेट विद दिस. जो भी बनना है, वो पंजीरी बननी है, whatever it is full load of oil and ghee, and the number of calories I think they give you at that time, for the next 6 months, 8 months, 1 year, till the time you're breastfeeding. तो वो 2500 से 3000 किलो कैलोरीज तो आराम से पर डे वो कंज्यूम करती होगी. एंड उस टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी इज ऑलमोस्ट नहीं. आपको उठना नहीं है, आपको चलना नहीं है, स्पेशली अगर LSCS हुआ है तो सीढ़ी नहीं उतरना है, ये नहीं करना है. सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इंडिया में, बहुत सारी मिथ्स हैं डिलीवरी के साथ जो एसोसिएटेड हैं, which leads to increase in weight. उन प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा उनको. वहाँ पे जब भी हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं या गायनोकोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जब जाते हैं तो उनको थोड़ा सा वहाँ पे पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि इस चीज को हमें कम करना है. तो ये जो वेट गेन है पोस्टपार्टम, इसको हम कम कर सकते हैं. और जो ये फीमेल्स जो 3 years 4 years पोस्टपार्टम भी अगर लगता है कि नहीं, इट इज नॉट द रीजन, वो हमारा डाइटरी और लाइफस्टाइल है जो which is leading to such weight gain and persistent weight gain. So we have to address that. Okay, ma'am. Thank you so much. Explained very well. Now, last question, audience question to Dr. Akash. Is there any relation between obesity and infertility? I mean to say, obesity can lead to infertility or hormonal issues in males? Right. So there is definitely a relationship. जैसा कि फीमेल्स में हमने देखा ओबेसिटी से हार्मोनल इम्बैलेंस होना, PCOS होना, ओव्यूलेटरी डिफिकल्टीज, जो एग बनता है उसका हेल्थ इनएडिक्वेट रहता है, एंड देन एंडोमेट्रियल चेंजेस, दैट इज यूट्रस जहाँ पे अल्टीमेटली बेबी का ग्रोथ होना है, जहाँ पे फर्टिलाइज होके इम्प्लांट होना है, उसका भी हेल्थ इनअप्रोप्रिएट रहता है. सो दैट इनफर्टिलिटी देखा जाता है इन फीमेल्स. इन मेल्स ऑल्सो till some extent we have seen कि infertility के issues create होते हैं. तो उसके भी काफी सारे स्टडीज है, एंड देखा गया है कि ओबीस पीपल में जब ओबीस रहता है तो जो स्पर्म रहता है उसका हेल्थ ओवरऑल क्वालिटी इम्पेयर्ड रहता है, उसका मोटिलिटी में इम्पेयरमेंट आने का चांस है, प्लस समटाइम्स उसका क्वांटिटी नंबर भी कम रहने का चांस रहता है. एंड आउट ऑफ दिस ओबीस विथ इनफर्टिलिटी इश्यूज, ये मेल्स को जब ट्रीट किया जाता है और उनका ओबेसिटी पार्ट को अच्छे से टैकल किया जाता है, व्हेन दे अचीव गुड वेट लॉस, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनका ओवरऑल सीमेन क्वालिटी इंप्रूव हो जाए. दैट इज उनका स्पर्म जो भी फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो इवेंचुअली उसका हेल्थ इंप्रूव होने लगता है. सो इट इज लाइकली कि मेल्स में भी ओबेसिटी कैन लीड टू सम इनफर्टिलिटी, एंड ओबेसिटी को ट्रीट करने से बेटर रिजल्ट्स मिलने का चांस रहता है. Thank you so much, Dr. Akash. Now we have come to the end of this session. That was quite interesting, quite an enlightening session. Now I will request each of our panelists to say something like a take-home message for our listeners. Dr. Nitin Kapoor, sir, please. Right. So my only message today would be that for all our viewers and listeners, that obesity एक
क्रॉनिक डिजीज की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे डायबिटीज का ट्रीटमेंट होता है, ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट होता है, वैसे ही ओबेसिटी का इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म होता है, इसको फॉलो करना पड़ता है. एंड it is important that if you feel that you are suffering from it, rather than going to any somebody जो एडवाइस करते हैं इससे पूछ लो, उससे पूछ लो, आई थिंक आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि इसका कैसे ठीक इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट करना है. Find your friendly neighborhood endocrinologist, and I'm sure they would be able to help you. Thank you, sir. Dr. Raghu, you say? That is obesity. So obesity के लिए कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और वजन भी धीरे धीरे घटाना होता है. ऐसे नहीं कि 10 दिन में घटा के 20 दिन में वापस रीगेन हो जाते हैं. तो सिंपल मोटो है, कम खाओ, ज़्यादा काम करो, जल्दी सोने का और जल्दी उठने का, और खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है. दिस इज अ मोटो. यू फॉलो दैट, डेफिनेटली वी कैन बीट ओबेसिटी, वी कैन प्रिवेंट डिसीजेस. बहुत ही अच्छा कहा, बहुत ही सही कहा सर आपने. खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है. कहते रहता हूं मैं पेशेंट को. या बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सब भूल चुके हैं अभी इस टाइम पे. अभिलाषा मैम, यू वांट टू से समथिंग? I totally agree with Dr. Raghu, but again I would like to add, genetics load the gun, but lifestyle pulls the trigger. So don't blame your genes. Do whatever there is in your hand. So improve your lifestyle. So which includes diet and exercise. Just don't blame the your genes and that bichara thyroid. And thyroid. Dr. Akash, you want to say to our listeners? Right. So I agree to all the opinions shared here today. And just last aspect, like do not stigmatize it, be it you or someone you love. आप खुद हो या आपके परिवार का कोई सदस्य, आपका दोस्त हो जो ओबेसिटी से लड़ रहा है, स्टिग्मेटाइज मत कीजिए, उसको बॉडी इमेज डिसऑर्डर में क्रिएट मत होने दीजिए, कन्वर्ट मत होने दीजिए, एंड गेट प्रॉपर हेल्प. कोई अच्छे स्पेशलिस्ट, अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से प्रॉपर हेल्प लीजिए, सो दैट यू विल गेट बेटर रिजल्ट. बिल्कुल सही बात. स्टिग्मेटाइजेशन एंड बॉडी शेमिंग, इस चीज को हम लोग ने वैसे भी डिस्कस किया, ये बहुत जरूरी है, स्पेशली इन द टीन्स एंड एडोलेसेंट यंग एडल्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी. तो आई होप कि दिस सेशन must have answered many of your queries and doubts regarding obesity, must have enlightened you, enriched you, information regarding obesity. And in our further sessions in this month of ASI FB Live, we will be discussing about the other complications and management of the obesity further. So I thank all my expert panelists, Dr. Nitin sir, Dr. Raghu sir, Abhilasha ma'am and Akash, that you being here. आपने बहुत अच्छा लोगों को बताया, चीजें बताई. तो thank you so much for being here. Thank you all. Thank you. Thank you. Shall we close this?